Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, sir. Hello, 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 sir. Sir, good afternoon, sir. good afternoon, sir. Hello, can you hear me? Yes, Hello. sir. We can Yes, hear sir. you. Yes. एक मिनट, एक Hello. Yes, sir. Yes, sir, you are audible. Hello. Hello. Yes, sir, you are audible, sir. No. Am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Hello. हाँ 1.5 घंटे बाद 1.5 hour
Yes, sir, you have joined, sir. How many are there now? 42 is 42. अच्छा ठीक है. अच्छा now I sent a mail about half an hour back, maybe more than that. Yes. Have you seen, anybody has seen the mail about the Trump papers? Hello. Hello. Not, sir, we haven't seen it yet. अच्छा तो जो अपना IIT वाला मेल आईडी है ना जिसमें courses@, Yes, sir. courses.iitd.ac. उसमें मैंने भेजा है, तो उसमें अपने IIT वाली मेल आईडी में चेक करना सब लोग. उसमें अटैचमेंट है, डिटेल्स दी हुई हैं. एंड यू गॉट 1 month टू कंप्लीट 2 term papers. One is in the group of 4, other is in the group of 2. तो जो एक टर्म पेपर है जो 4 लोग मिलके करेंगे, दूसरे में दे विल गेट डिवाइडेड इनटू 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स. So that will be a 2-person groups. Okay, 2 term papers will be there. अच्छा, now any questions you have about the midterm examination? कुछ confusion था किसी को, किस question में था? Sir, मुझे था sir. Sir, I had confusion, but I can't see the question, and so I cannot talk about that. नहीं मैं क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ. तो ये बताओ Yes, कि sir. कौन से क्वेश्चन में था ये? So if I will see the question paper, then only I can talk about that. ओके ठीक है, मैं दिखाता हूँ जरा सा. Sir, I also had there were few बहुत सारे क्वेश्चन थे सर जिनके आंसर्स या ऑप्शंस जो थे वो अभी एक मिनट में दिखाता हूँ. मैं सारा क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ. Can you see this now? Not yet. Not yet. Now we can see. You can see ना. चलो हाँ बताओ, पहला क्वेश्चन ये था. Second question was this. Third question was this. Fourth question. Fifth question. Sixth question. It seems like for everybody there was question number was different. हाँ तो इसीलिए तो कह रहे हैं, पढ़ के देख लो भाई. जो ये तो रैंडमाइज आते हैं ना उसमें, मूडल में. धीरे धीरे चल रहा हूँ. so an inventor has to necessarily seek assistance of the patent agent, or if he can manage on his own he can go without patent agent. An inventor has to necessarily seek assistance of the following for filing a patent. ये जो है ना necessarily तो जरूरी नहीं है ना. If you are competent you do it yourself. Okay. ठीक है ना. तो इसका जो बोर्ड में है that is answer. Yes, sir. ठीक है. necessarily वर्ड आ गया ना. तो necessarily तो ठीक है. If you are competent, if you yourself are patent agent, then you file on your own. You don't have to seek anybody else's thing. After this course, suppose you in addition whatever you are doing, and you may think कि चलो हम भी एक पेटेंट एग्जामिनर का, पेटेंट एजेंट का एग्ज़ाम दे लेते हैं. पेटेंट एजेंट का एग्ज़ाम दे लो. ठीक है.
क्वेश्चन पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। पर मोस्ट ऑफ यू हैव डन वेरी वेल, सबका 28 से ऊपर ही है, 30 में से। So can I see my paper, answer paper, or like the review part? अभी तो मैं ऐसा है कि वो 1 by 1 होगा ना, ये तो सारा जनरिक है, तो 80-90 क्लास में तो जनरिक चीज दिखाएंगे ना, क्लास में एक एक कर लेके देखेंगे तो 10-15 घंटे लग जाएगा। ठीक है, तो Moodle पे नहीं हम लोग देख सकते? और मुझे नहीं मालूम, देख सकते हो तो देख लो। सर उसमें परमिशन आप ग्रांट करेंगे तब देखेंगे। चलो वो भी कर देंगे, अभी ये तो देख लो ना, अभी जो दिख रहा है। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, डिस्कशन का हो, जरूरत हो तो बताओ मुझे। सर 12th वाले में Yes, sir. About this question, if you can talk about like question number 12. Neighboring or related rights cover the rights of the following: music composers, painters, photographers, none of the above. जो म्यूज़िक होता है वो उसका कॉपीराइट होता है, म्यूज़िक की कितनी लैंग्वेज होती है, तो नोट्स होते हैं जिनको लैंग्वेज में लिखा जाता है। जो पेंटर्स होते हैं वो पेंट करते हैं, वो होता है उसका खुद का राइट होता है कॉपीराइट। फोटोग्राफर ने जब फोटोग्राफी की है उसका कॉपीराइट होता है। ठीक है, और रिलेटेड राइट्स आर नॉट दिस थिंग, रिलेटेड और नेबरिंग राइट्स आर इन द पेरिफेरी ऑफ द कॉपीराइट। इन क्लास पहली जो हमने पहला इंट्रोडक्शन दिया था, विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ IPRs, उसमें ब्रीफ डिस्कशन में आई टोल्ड दैट व्हाट इज द नेबरिंग राइट और रिलेटेड राइट्स। जो एनी सपोज यू नो हसरत जयपुरी ने एक सॉन्ग लिखा है फिल्म का, तो कॉपीराइट किसका हुआ? हजरत जयपुरी का। कॉपीराइट इज असाइन टू द फिल्म प्रोड्यूसर। फिल्म प्रोड्यूसर ने उसको पैसे दिए 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये देके वो गाना खरीद लिया, तो कॉपीराइट किसका हो गया? फिल्म प्रोड्यूसर का। तो उस गाने को कहा लता मंगेशकर जी से कि आप इसको गा दीजिएगा, लता मंगेशकर जी ने उस गाने को गाया, किसी म्यूज़िक कंपोजर ने उसका म्यूज़िक दिया, ठीक है, और किसी ने उसको रिकॉर्ड किया। तो जो राइट्स ऑफ द सिंगर्स, सिंगर ने लिखा नहीं है ना, राइट ऑफ द सिंगर, राइट ऑफ द रिकॉर्डिंग कंपनी रिकॉर्ड कर रही है ना, और राइट्स ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज, चाहे वो दूरदर्शन हो, चाहे ऑल इंडिया रेडियो हो, या फिर दूसरा चैनल हो किसी भी टाइप का, तो वो उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो दीज 3 थिंग रिलेटेड राइट्स होते हैं इनके, एंड विद देयर राइट्स आर नोन एज नेबरिंग और रिलेटेड राइट्स। ठीक है, एंड कॉपीराइट तो फिल्म जिसने लिरिक्स लिखे थे, गाना लिखा था उसके थे, एंड आफ्टर दैट इट इज सोल्ड टू द फिल्म प्रोड्यूसर। तो कॉपीराइट नाउ रिमेन्स विद द फिल्म प्रोड्यूसर। ओके, कॉपीराइट उसका है, पर जो हाउ दैट कॉपीराइटेड वर्क बिकम सो फेमस, उसके लिए जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, दे आर सिंगर्स, रिकॉर्डिंग कंपनीज एंड द ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज ना, उनके होते हैं रिलेटेड राइट्स। ठीक है,
these are also objectives. ABC are the objectives. So the question is which are is or are not the objectives. ठीक है ना? Not the objectives में ये तीनों objectives हैं, तो none of the above. ठीक है? तो पर किसी भी जगह पे ऐसा नहीं लगता है कि टू इनकरेज मोर पेटेंट फाइलिंग बाय द एकेडमिया, आइडियली होंगे प्रिंसिपल में, लेकिन कहीं मेंशन नहीं होता है कि दे वांट टू इनकरेज मोर पेटेंट फाइलिंग बाय एकेडमिया। नहीं, वो 7 ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है, क्लियरली दिया हुआ है 7 ऑब्जेक्टिव्स जो डिस्कस किए थे ना हमने। उन 7 ऑब्जेक्टिव्स में जो लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव है शायद वो है एकेडमी वगैरह को, हाउ टू प्रमोट पेटेंट फाइलिंग इन द एकेडमी। पेटेंट पोर्टफोलियो एनालिसिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज। बहुत सारे उनके पेटेंट्स होते हैं, हज़ारों में होते हैं, 5-6,000 पेटेंट हर साल फाइल कर रहे हैं। तो ऑल IMSMEs, कुछ SMEs ऐसे होते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेज, जिनको पेटेंट के बारे में ना तो नॉलेज ना करना है उनको। वो जो 15 अगस्त को 26 जनवरी को जो ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर इंडिया का फ्लैग छोटे छोटे से बेचते हैं वो लोग, उसका जो मैन्युफैक्चरर है जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, छोटे बच्चों को देता है बेचने के लिए, उसको पेटेंट पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या, उसको पेटेंट का मीनिंग नहीं मालूम होगा। उसने छोटे छोटे फ्लैग छाप के एक डंडी में लगाए और रोड साइड बेचने लगा। पब्लिकली फंडेड R&D इंस्टीट्यूशन एंड ऑल IITs। तो हमें सबको पेटेंट पोर्टफोलियो एनालिसिस होती हैं, बट ऑल MNCs they need it. Which IPRs can be protected by an inventor? इन्वेंटर का जो इन्वेंशन है उसका उसने डेस्क्रिप्टिवली जो लिखा है उसके ऊपर उसका कॉपीराइट है। जो इन्वेंट किया है उसके ऊपर पेटेंट है, और उसने उसका कोई डिज़ाइन भी बनाया है चीज़ का तो उसके ऊपर भी उसका है। तो सारे ही कैन प्रोटेक्ट ऑल ऑफ देम। AIs can be registered in India for goods, services, both goods and services, none of the above. Goods के लिए होता है हमेशा GI। What is the term of registered design? 10 years, extendable by another 5 years. What does GATS stand for? General Agreement on Trade and Services. So the following is not covered under intellectual property rights. जोक रिटर्न, तो एक बार लिखा तो आपका कॉपीराइट हो गया। जो ट्रांसलेशन हुआ वो कॉपीराइट हो गया। जो इन्वेंशन हुआ, वेदर यू आर मेंबर ऑफ WTO और नॉट ए मेंबर ऑफ WTO, आपके कंट्री में आपका पेटेंट एक्ट होगा तो आप पेटेंट को उसको आप वो करेंगे। हम इन्वेंशन है तो इन्वेंशन इज पेटेंटेबल, बट ट्रेडिशनल नॉलेज इज नॉट पेटेंटेबल बिकॉज इट्स ऑलरेडी देयर। नॉवल्टी नहीं है इसमें। इट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बट नॉट पेटेंटेबल। Patent is not granted in WTO member countries for the following. Trade secrets का WTO member countries तो ऐसे डाल दिया है, but it is that patent is not granted. सब तीनों चीज़ों का होता है ABC का, ट्रेड सर्विसेज का नहीं होता है। Which convention deals with the protection of industrial property rights? Paris Convention. Which of the following is not a limitation on patent rights? Option to use, open to use in research and development purposes. Further R&D के लिए you can produce the goods. So the following is not an IPR. Traditional knowledge. Which of the following IPRs is granted and not registered? Patent is granted, all others are registered.
Patent claim is best drafted by inventor, assignee, patent attorney, and patent agent. Patent claims जो हैं they are best drafted by the attorneys because the language is very important. Sir, what's the difference between patent attorney and patent agent? Patent agent is a technical person who is a science or technology graduate, postgraduate or PhD in any areas of the science and technology. And he qualifies the written examination conducted by the Registrar General of Patent, Design and Copyright. The examination conducted, you qualify the examination, and then when you qualify the examination, you register as a patent agent. And this examination consists of two parts: two papers in written, and third is the interview. If you qualify in both the papers with more than 50% marks, you qualify for the interview. If you get more than 50% marks in the interview, then you have qualified the patent agent's examination. And when you qualify the patent agent's examination, you can register yourself as the patent agent. Okay, by paying some fee, we discuss that also. So this is a patent agent who is a technical person. Patent attorney is any LLB, LLM जो जिसने लॉ किया हुआ है, BA के बाद में लॉ किया, और लॉ करने के बाद में आप वकालत करनी चालू की, and after that you develop an interest and you started practicing litigation on any of the IPRs. तो पेटेंट के जो लिटिगेशन करता है पेटेंट अटॉर्नी है, जो ट्रेडमार्क के लिटिगेशंस को हैंडल करता है वो ट्रेडमार्क अटॉर्नी हो गया, जो डिज़ाइन अटॉर्नी हो गया, कॉपीराइट अटॉर्नी। कुछ अटॉर्नीज़ हैं जो कि हर तरह केस लेते हैं, जिनके पास में जो उनका जो ऑफिस है, दे एम्प्लॉय up to 100-200 this लॉ ग्रेजुएट्स। बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स हैं, उनमें 40, 50, 60, 70, 80 वो लोग हैं जो कि ये काम कर रहे हैं पेटेंट के इन सब का। तो जूनियर लेवल पे हैं, मिडिल लेवल पे, सीनियर लेवल पे हैं, एंड दे गेट द केसेस जो करोड़ों के कोई 100 करोड़ का है तो 500 करोड़ का है, इतने के जो बल्क वाले हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, वो इतनी बड़ी कंपनीज को दे डू द पेटेंट फाइलिंग। तो दे हैव गॉट देयर ओन पेटेंट एजेंट्स जो कि उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं, और जो क्लेम्स को जो अटॉर्नीज होते हैं वो लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आपको प्रोटेक्शन इम्प्रूव करने के लिए उसकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, Which of the following is not an example of geographical indication? शैंपेन वाइन होता है ना, शैंपेन विस्की नहीं होता। आगे चलें। यस सर। What is the full form of GATT? General Agreement on Tariffs and Trade. In the late 2010s, which country filed the highest number of patents per unit of GDP? Per million US dollars of GDP, Korea filed the highest. We discussed that. What is the correct order of countries for their decreasing number of PCT applications during 2018? Sir, this question is there is no option like on the fourth position there should be Germany, and three of three. No, last question. 31st. No, 30th. This question, yes. What is the correct order of countries for their decreasing number of PCT applications during 2018? Japan, Korea, China, Germany, China, Japan, USA, Korea, USA, Japan, China, Korea, USA, China, Japan, Korea. Sir, there should be perhaps USA, China, Japan, and Germany. That is not an option in four of these.
नहीं नहीं, इसमें देखो ऐसा है कि इन जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें कोई मिसिंग भी तो हो सकता है, इसमें कोई ये मतलब इन 4 में से बताओ क्या है, ठीक है ना। ओके, इन 4 ऑप्शंस में से यू हैव टू से विच इज करेक्ट। देखो पीसीटी एप्लीकेशन यूएसए की सबसे ज़्यादा हैं, उससे कम चाइना की हैं, बीच में कोई और कंट्री हो सकता है, देन जापान है, फिर कोरिया है, बीच में और भी कोई कंट्री हो सकता है, इसमें कोई नहीं है, बट ये इनका तो ऑर्डर यही है ना, ठीक है। यस सर, ओके। अच्छा, जो पहले के 4-5 क्वेश्चन थे उनको दोबारा देखना है किसी को, तो पहले के देख लो दोबारा, देखना चाहते हो उसको। यस यस सर। Only 1 is correct, 2 or 3 are correct, 1 and 4 are correct. Sir, if you can discuss about this question, that will be better. Industrial property rights include patents and trademarks, but not copyrights. Industrial property rights include patents and industrial designs, but not copyrights. ठीक है, तो ट्रेडमार्क को भी इंक्लूड करते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन को भी इंक्लूड करता है, पेटेंट को भी इंक्लूड करता है, बट नॉट कॉपीराइट। तो 1 and 4 आर करेक्ट, ठीक है। ये बट नॉट इंडस्ट्रियल डिजाइन, बट नॉट ट्रेडमार्क गलत है, बीच का दोनों। तो 1 and 4, बिकॉज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड डिजाइंस, बट नॉट कॉपीराइट। तो पहले वाले में हमने डिज़ाइन को यहाँ मिस किया, इसमें हमने 4th में ट्रेडमार्क को मिस कर दिया यहाँ पर डिज़ाइन है। तो दीज टू आर इंक्लूडेड, दीज टू आर इंक्लूडेड, बट नॉट कॉपीराइट, बट नॉट कॉपीराइट, ठीक है। तो 1 and 4 आर करेक्ट। Okay. Mr. Raman bought a new type of toaster produced by a new startup company, which has transparent outer sides of glass and that enable the user to visually notice the extent of roasting of the bread slices. तो उसमें आपको दिख जाता है बाहर से कितना ब्राउन हो गया। He also got an instruction manual along with toaster. Which of the following IPR this toaster producing company should have applied for? तो उसका जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है उसके लिए कॉपीराइट, जो उसका इन्वेंशन क्या है पेटेंट, और जो उसका शेप है डिज़ाइन है उसके लिए इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, एंड जो भी उसका नाम देना चाहता है वो तो कहता है कि 5 स्टार टोस्टर, ट्रांसपेरेंट टोस्टर, जो भी नाम देना चाहता है उसका, तो उसको ट्रांस टोस्टर है ना, मॉडर्न टोस्टर, कुछ भी उसको जो ट्रेडमार्क देना चाहता दे सकता है। तो पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ही कैन रजिस्टर फॉर ऑल द 4। जैसे कैमरे का एक एग्जांपल दिखाया था ना हमने कि कैमरे का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, शटर स्पीड का कुछ पेटेंट है, एंड उसका डिज़ाइन है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल का ट्रेडमार्क है, लाइक दैट। Yes sir. Some alternative for an IT company in seeking IPR for a new useful software for a new model washing machine are as follows। अब जो सॉफ्टवेयर है वॉशिंग मशीन से रिलेटेड है, तो वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करता है, तो इसमें है कि पेटेंट एंड ट्रेडमार्क बट नॉट कॉपीराइट, पेटेंट बट नॉट कॉपीराइट, पेटेंट एंड कॉपीराइट बट नॉट ट्रेडमार्क, copyright but not patent. Choose the correct answer from the following. So only 3 is correct: patent, copyright but not trademark, ठीक है। ये जो IT कंपनी है फॉर ए न्यू यूजफुल सॉफ्टवेयर, इसने जो नया सॉफ्टवेयर बनाया है, सॉफ्टवेयर का ट्रेडमार्क होगा ही नहीं होगा। Sir, why can't we trademark for software? सॉफ्टवेयर का ट्रेडमार्क थोड़ी होता है। आपने Maybe for washing machine. नहीं, वॉशिंग मशीन का है ना ट्रेडमार्क, पर यहाँ पर है कि सम ऑल्टरनेटिव फॉर एन IT कंपनी इन सीकिंग IPR फॉर ए न्यू यूजफुल सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द फोकस? उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वॉशिंग मशीन के लिए, जो सॉफ्टवेयर है, दैट सॉफ्टवेयर इज
सॉफ्टवेयर इज उसका ट्रेडमार्क नहीं होता ना सॉफ्टवेयर का, ये जो है ना पेटेंट एंड कॉपीराइट। पेटेंट आप करेंगे उसको बिकॉज इट इज रिलेटेड टू, इट इज ए एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, एंड कॉपीराइट होता है हर सॉफ्टवेयर कॉपीराइट होता है, ठीक है, बट नॉट ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर का ट्रेडमार्क नहीं होता है, ठीक है सर। आगे चलें या नहीं? सर Shall we move ahead? What is correct? Present IPR legislations in India include the Indian Patents Act and Excuse me, sir. present IPR legislation in India include, ये इंडियन पेटेंट है, इंडियन वर्ड नहीं है यहाँ पर, इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट है, इंडियन वर्ड नहीं है, इंडियन पेटेंट्स एक्ट है, इसमें इंडियन नहीं होता हमारे, इसमें हमारा है द पेटेंट्स एक्ट, ये सही है, और द ट्रेडमार्क एक्ट ये सही है, ठीक है, ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। TRIPS agreement is administered by WTO. Okay. बस बाकी तो देख लेते हमने, शुरू 5, ठीक है, close it now. Sir, I have a हाँ। question. I have a question on the question number 2. जब मैंने बंद कर दिया है मुझे दोबारा रूम के खोलना पड़ेगा उसको। No, actually it was on the O1. Actually, for the manual, there is no need to copyright. It actually comes automatically. No, so there is no need to register. No, sir. एक मिनट, मैंने पूछ के बंद किया था कि शुड आई क्लोज इट नाउ। रमन्ना वाला जो यहाँ पे दिखाया था वो वाला। Yes, sir. Yes, sir. This one in this question number 2. हाँ, दिख रहा है या नहीं दिख रहा अभी? Yes, sir. Yes, sir. Mr. This Ramanan one, bought sir. a new type of toaster. Yes, sir. In that, I think the copyright is not should not be applicable because copyright is need not to be registered. No, sir. Which of the following should have applied for? I think copyright comes automatically once it is written. It comes automatically. I think the company need not to apply for it. No, sir. What is the question? The question is which of the following? एक मिनट देखो, which of the following IPR this company should have applied for? Yes, sir. ठीक है, और could have applied for और may apply for,
तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल के लिए अगर उसने अप्लाई किया है तो देयर इज नो हार्म. ओके, all companies, big companies apply for copyright for something which they feel that can be copied by others and for which they will have to go for litigation and prove themselves. So if they apply for a copyright for the instruction manual, so that any competing company cannot use identical instruction manual. If any other company uses an identical or instruction manual, then they can go to the court and say this is our instruction manual which is registered under the Copyright Act 10 years back, and this company is now doing this using our instruction manual. Yes, sir. Okay. But copyright is actually, as you said, when some author writes something or they create something, then it automatically they need not register it. Like the copyright automatically comes to the author. No. See, author. See, when an author is writing, a company is writing, it is the same thing. Okay. It is an entity. Okay. If an author is writing, then he gets the copyright. But suppose there is a company which is employing 20 authors for writing something. So whatever they are writing, the copyright is assigned to the company. Okay. I wrote a book. The publisher, Pearson Education, asked me to transfer the copyright. Okay, so I transfer the copyright. So who has the copyright? Pearson Education has the copyright. Okay, I have transferred my copyright to Pearson Education. Okay, because suppose somebody, other publisher publishes the identical book, I will not have time, energy and money to fight that big publisher who is infringing my copyright. And my publisher will not be able to do anything because that publisher doesn't have a copyright. So he cannot go to the court of law. So I have to assign my copyright to him, and then he will tell the court that this copyright is assigned to me and this is being infringed by somebody else. Complicated procedure. So now companies have copyright. Okay. So instruction manual is copyright. Any other question? Should I close it? No, sir. Just one question, sir. I don't know the number, but that question was about restoration of lapsed patents. So in that question, there were 4 options like who can restore the lapsed, apply for restoration of lapsed patents. So in that there was. Let me just quickly go through. 21. No, Lapsed patent has to be restored by the Office of the Control General of Patents. Yes, sir. If it is requested by a micro entrepreneur, if it is requested by a small entrepreneur, if it is requested by a large company. And the thing is that it has to be restored. Highlighted दिख रहा है अभी? Yes, sir. So lapsed patent जो है इसके लिए it is not has to be restored. It may be restored. It is not a compulsory thing. It is a discretion of the Controller General. And if you attended the class, I told in the class कि IIT दिल्ली का एक पेटेंट था जो प्रोफेसर ने कहा कि इनको 5 साल हो गए पेटेंट को, रिन्यूअल का टाइम आया है तो इसको रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है. नोबडी इज आस्किंग फॉर एनीथिंग, वी आर वेस्टिंग मनी. And 6 months after that, 3 months after that, somebody showed some interest in it, and then they, IIT Delhi, which is IIT is represented by FITT. तो FITT ने एक एप्लीकेशन डाला रेस्टोरेशन के लिए कि हमारे पास एक इंक्वायरी नहीं आ रही थी पहले, अब इंक्वायरी आई है तो वी वांट टू रेस्टोर आवर लेस पेटेंट. तो रिजेक्ट हो गया था बिकॉज less patent has to be restored is not correct, may be restored depending on the merits of the case.
तो आपकी एप्लीकेशन होगी मेरिट्स के ऊपर कि भाई आपकी जो मैनेजर था उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उसने नौकरी छोड़ दी लास्ट मोमेंट पे, आप उसको रिन्यू नहीं करा पाए, अब आपको 4 महीने 3 महीने बाद मालूम पड़ा कि ये तो हमारा लैप्स हो गया है, तो यू रिक्वेस्ट कि हमारे ऐसे सर्कमस्टेंस हो गए थे जिससे लैप्स हो गया. You should not be willfully not renewing the patent and then asking for lapse. Clear है या नहीं बात? Sir, it is clear. I know that story, but at that time I didn't understood has to be or maybe when in the exam, so I have done this wrong. Has to का मतलब compulsorily है. आपने एप्लीकेशन दे दी तो कंपलसरी हो गया, ठीक है. कंपलसरी नहीं है उसको कुछ भी, आपका मेरिट होगा जो एप्लीकेशन के ऊपर, उसके बेसिस पे ही वो डिसीजन लेंगे. एंड देयरफॉर इट इज ए लेस पेटेंट मे बी रेस्टोर्ड. ठीक है. Shall I Yes, close sir. it now? Now, close it? yes, sir. चलो. कॉपीराइट्स एंड रिलेटेड राइट्स में और नेबरिंग राइट्स में क्या डिफरेंस है? नेबरिंग राइट और रिलेटेड राइट एक ही चीज़ होती है. कुछ कंट्रीज में उसको नेबरिंग राइट बोलते हैं, कुछ में उसको रिलेटेड राइट बोलते हैं. ठीक है. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट एंड नेबरिंग राइट्स में? सर कुछ होता है डिफरेंस? अभी तो बताया था, जो आप लिखते हैं, कुछ फोटो खींचते हैं, आप कुछ मूरल बनाते हैं, कुछ आप आपका जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी से जो क्रिएट करते हैं आप चीज़, जो लिटरेरी टाइप की होती है, लिटरेरी टाइप में पेंटिंग आ जाती है, फोटोग्राफ आ जाता है, आपने फोटो खींचा किसी का वो भी उसमें आ जाता है. तो जो कॉपीराइट में आ जाते हैं, म्यूज़िक को जो कंपोज करता है उसके एक लैंग्वेज होती है, उसकी लैंग्वेज में अगर गाना लिखा होगा, मतलब म्यूज़िक होगा, तो उसने लिख दिया. तो अगर इफ़ यू नो द म्यूज़िक की लैंग्वेज, आप अमेरिकन है, रशियन है, रशियन हिंदी नहीं जानता, इंग्लिश नहीं जानता, पर रशियन जानता है, और जो म्यूज़िक की लैंग्वेज सेपरेट होती है, उस लैंग्वेज में जो लिखा है वो वैसा ही बजा देगा गिटार पे, जैसा कि आपने एक ब्रिटिश ने बजाया, जापानी ने बजाया, इंडियन ने बजाया. ठीक है. एक तमिली ने बजाया, एक पंजाबी ने बजाया, एक बंगाली ने बजाया, क्योंकि उसकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, तो उस लैंग्वेज में उसका कॉपीराइट हो जाता है. तो म्यूज़िक का कॉपीराइट होता है, पर जो गाता है सिंगर, जिससे कि गाना फेमस हुआ, सिंगर ने गाया, रिकॉर्डिंग कंपनी ने उसको रिकॉर्ड किया, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने उसको गाने सुनाए सबको, ठीक है, जिससे वो फेमस हो जाता है गाना. ठीक है. अब मेरे वतन के लोगों, लता मंगेशकर ने गाया, तो लता मंगेशकर राइट इज अ रिलेटेड राइट. ठीक है. जितने भी गाने गाए हैं लता मंगेशकर ने, मोहम्मद रफ़ी ने, मुकेश ने, मन्ना डे ने, हेमंत कुमार ने, और जो आजकल के ज़माने के इतने सारे नए, किशोर कुमार तो पुराने ज़माने के हैं, बट ऑल दी पीपल दे हैव गॉट द रिलेटेड राइट. ठीक है. राइट सर. तो फिर हम लोग का वो आंसर जो था, पेंटर्स, फोटोग्राफर्स, म्यूजिक कंपोजर्स, फिर वो अगर उनके पास राइट्स हैं, तो फिर हमारा आंसर नेबरिंग और रिलेटेड राइट्स डोंट कवर द राइट्स ऑफ फॉलोइंग. उसमें नन ऑफ द फॉलोइंग, नन ऑफ द अबव राइट आंसर है, जबकि उसमें पेंटर्स हैं, फोटोग्राफर्स और म्यूजिक कंपोजर्स. मैं दोबारा देखता हूँ. अभी मैंने उसको डिलीट किया. अब देर लास्ट में ओपनिंग इट, कौन सा था वो, क्या क्वेश्चन था, दोबारा बताओ. The following neighboring or related rights cover the rights of the following: painters, photographers, and of the above music composer. ये वाला, नेबरिंग और रिलेटेड राइट्स कवर द राइट्स ऑफ द फॉलोइंग. म्यूजिक का नहीं करते हैं. म्यूजिक कंपोजर का कॉपीराइट होता है, पेंटर का कॉपीराइट होता है, फोटोग्राफर का कॉपीराइट होता है. ठीक है. म्यूजिक कंपोजर का, पेंटर का, फोटोग्राफर का, पिकासो का, एम.एफ. हुसैन का जो है पेंटिंग जो बनाई उन्होंने, उनका कॉपीराइट है उसके ऊपर. ठीक है. कॉपीराइट और रिलेटेड राइट्स में डिफरेंस क्या होता है? अभी तो बता के चुके हैं कि जो
लिटरेरी वर्क है उसके ऊपर उसका कॉपीराइट होता है। और द लिटरेरी वर्क लाइक ए सॉन्ग, जो हसरत जयपुरी ने गाना लिखा तो कॉपीराइट है उसका, और उसको लता मंगेशकर ने गाया तो लता मंगेशकर नेबरिंग या रिलेटेड राइट है। जिस रिकॉर्डिंग कंपनी ने उसको रिकॉर्ड किया उसका रिलेटेड और नेबरिंग राइट है। और जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को ब्रॉडकास्ट करके जैसे गाना फेमस हो गया उनका नेबरिंग और रिलेटेड राइट है। इनका टर्म भी सबका अलग अलग होता है, ठीक है। नेबरिंग राइट का टर्म अलग होता है। कॉपीराइट का 60 ईयर्स है इंडिया में फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द ऑथर। Sir, I think if you can talk about neighboring rights and related rights, like we don't, almost all of us were not present in the first class, so it will be better if you can talk about that. अभी बता तो दिया ना मैंने कि any copyrighted work and when the neighboring rights and related rights refer to the rights of the singers, recording companies and the broadcasting company, ठीक है। और बाकी इसको डिटेल में हम जब कॉपीराइट को दोबारा पढ़ेंगे ना डिटेल में तब करेंगे उसको, ठीक है। Sir, even if you can share about some article about this, that will be better. We can understand. Like I don't find anything on internet, so I'm not able to understand it right now. हसरत जयपुरी ने गाना लिखा, ठीक है, किसका हुआ कॉपीराइट? जिसने गाना लिखा उसको हुआ ना कॉपीराइट। आर यू प्लीज रेस्पॉन्ड टू मी। Yes, sir. हजरत जयपुर ने उस गाने को सुभाष घाई को भेज दिया जिन्होंने उसके ऊपर फिल्म में डाला उसको गाने को, ठीक है। तो फिल्म में किसी हीरो हीरोइन ने किसी ने भी जैसे भी गाना वहाँ पे फिल्म उसको वो किया है, पिक्चराइज किया है, पर उस गाने को गाया तो है ना किसी ने। Yes, sir. लता मंगेशकर ने गाना गाया तो लता मंगेशकर राइट जो है वो कॉपीराइट नहीं है। लता मंगेशकर राइट है दैट इज नोन एज नेबरिंग राइट या रिलेटेड राइट, ठीक है। कुछ कंट्रीज में इसको नेबरिंग राइट बोलते हैं, कुछ में बोलते हैं रिलेटेड राइट विच इज इन द क्लोज विसिनिटी टू कॉपीराइट। कॉपीराइटेड वर्क को नेबरिंग राइट जिनके होते हैं दे आर द पीपल हु मेक द पर्टिकुलर कॉपीराइटेड वर्क वेरी पॉपुलर। तो लता मंगेशकर ने गाया गाना और उसको किसी म्यूज़िक कंपोजर ने तो म्यूज़िक दिया तो उसका तो कॉपीराइट हो गया। तो म्यूज़िक कंपोजर का उसकी अपनी लैंग्वेज होती है, उसने लिखा है, उसने गा दिया गाना, तो म्यूज़िक कंपोजर का तो कॉपीराइट। पर जो हजरत जयपुरी कॉपीराइट हुआ लता मंगेशकर का नेबरिंग राइट हुआ है, रिलेटेड राइट हुआ। और उसको HMV ने किसी रिकॉर्डिंग कंपनी रिकॉर्ड किया और उसको जिन जिन चैनल्स ने उसको किया, जिस चैनल ने राइट खरीदे, जैसे एक फुटबॉल का वर्ल्ड कप सॉकर मैच होता है, वर्ल्ड कप क्रिकेट होता है, तो इन सब के जो राइट्स होते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट कुछ चैनल खरीदते हैं ना। एक स्पोर्ट्स चैनल है उसने उसका राइट खरीद लिया पैसे देके बिडिंग में, तो वो वर्ल्ड कप के सारे मैचेस दिखाएगा वो चैनल, बाकी कोई भी नहीं दिखा सकते उसको, ठीक है। एंड ये जो राइट होते हैं ये होते हैं एक्सक्लूसिव राइट होता है, क्योंकि जो कंपनी जो राइट खरीदती है वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, वर्ल्ड कप सॉकर होता है, उसका जो इतना खर्चा होता है ऑर्गेनाइजर्स का, वो ऑर्गेनाइजर पैसा कहाँ से कमाते हैं? प्लेयर्स को भी देते हैं पैसा, कहाँ से देंगे? वो कहते हैं कि हम इसका है ना इतने में देंगे, इसका है कि 500 करोड़ रुपीज़ में से राइट्स बेचे हमने, 1000 करोड़ में इसके राइट्स हम मतलब बिडिंग मांगी उन्होंने, तो किसी ने 1000 का बिड किया, किसी ने 800 का, किसी ने 600 का, एक ने करा 1355 रुपीज़ का, तो हाईएस्ट बिडर को उन्होंने राइट दे दिए। तो उनके पास इतना पैसा उसी तो इनको पे करेंगे ना, और इतना खर्चा होता है इन लोगों का। और इनके पास में ये जो इनको राइट्स दिए हैं, तो जिस कंपनी जिस टीवी चैनल ने राइट्स खरीदे हैं और 1155 रुपीज़ को दिया है, वो एडवर्टाइजर्स से पैसा कमाएंगे। सुबह से शाम तक 1 महीने तक एडवर्टाइजमेंट दिखाते रहेंगे वो। तो किसी कंपनी के प्रोडक्ट किसी कंपनी ने उन्होंने 10 करोड़ लिखी थी, 50 करोड़ की थी, 20 करोड़,
वैसे कराते उन्होंने 1500 करोड़ में अपना एड का जो स्पेस होता है वो बेचा। तो 1500 करोड़ माइनस 1155 करोड़ जो है, ओके, 345 करोड़ रुपीज़ उसको प्रॉफिट हुआ ना ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज को। तो चाहे जो स्पोर्ट्स को वो दिखाते हैं वो रिलेटेड राइट है, नेबरिंग राइट, किसी गाने को वो रिकॉर्ड करके, मतलब रिकॉर्डिंग कंपनी का रिकॉर्ड उसका रिलेटेड राइट है, और उसका जब उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं तो वो ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज का होता है रिलेटेड राइट। ठीक है? Yes, तो sir. उसके Now बाद it's yes, sir. You can. जो लिखा जाता है उसको कॉपीराइट होता है। ठीक है? और जो लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है, तो क्लियर हो गया? बंद कर दें इसको या अभी एक बार और खोलना पड़ेगा मुझे? Should I close this paper? Yes, sir. You can. I think so. चलो, ओके। My screen is shared with you, no? Yes, sir. Your screen is visible. अच्छा, मैं एक वो दिखा रहा हूँ, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। टाइम तो है नहीं ज़्यादा कुछ पढ़ाने के लिए, ठीक है? दिखा जुगाड़? Yes, sir. Your screen is visible, but the video has not yet started. देखा? No, sir. If you can replay that, it will be better. Like what I said. ये देखो, ये एक ऑटो रिक्शा कितने सारे ठेले को पीछे लगा के इसका एक और वीडियो है, चलो वो वाला दिखाता हूँ, शायद उसमें ज़्यादा क्लियर आ जाएगा। You are able to see the screen? Yes, sir. We can see. Not at my end, sir. What I wanted to show, just I'll explain it, कि एक ऑटो रिक्शा टाइप का जो है ना, जो गुड्स कैरियर होता है, ट्रायंगुलर थ्री व्हीलर गुड्स कैरियर, उसने अपने पीछे इतने सारे ठेले, रात को ये इनका ठेले का एक ग्रुप बना रखा है इन लोगों ने। तो 20 ठेलों को, जो 4 पहिए वाले ठेले होते हैं ना, जो फ्रूट्स या ये बेचते हैं,
वेंडर्स, Yes, sir. उतने सारे ठेलों को एक एक जना पैदल लेके जाएगा 10-15 किलोमीटर तक, तो उसको तो 2 घंटे 3 घंटे वॉक करने में लग जाएंगे। तो उनको एक के अंदर एक फिट किया और वो सारे ठेलों को एक उनका जो वो है गुड्स कैरियर है, 3 व्हीलर गुड्स कैरियर, उसके पीछे उन्होंने लगा दिया और वो सारे के सारे उसको एक साथ पुल होके वो आधे घंटे पहुंच गए सारे अपने घर पर। और अगले दिन मॉर्निंग में वो सारे के सारे अपने घर से मंडी पहुंच जाएंगे और मंडी में ठेले पे सामान रखेंगे, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, और फिर इस तरह खींच के लाएंगे उन सबको। तो दिस इज आवर जुगाड़ टेक्नोलॉजी इंडिया की। समझ में आई जुगाड़ टेक्नोलॉजी? Yes, sir. अच्छा, अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। I had planned to discuss this WIPO administered international treaties, but अब खाली 5-7 दिन बचा है। ये जो है वो I'll start this thing next time। ये जो है 3 तरह की होती हैं ट्रीटीज, मैंने पहले बताया था। ये आईपी प्रोटेक्शन के लिए होती है, जो कि हर कंट्री में अपने को आपको आईपी प्रोटेक्शन चाहिए, उसके ऊपर सिमिलरिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए सब वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में। ग्लोबल प्रोटेक्शन ट्रीटी इज़ कि एक एप्लीकेशन से आपको ग्लोबल प्रोटेक्शन मिल जाता है, एंड पीसीटी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ग्लोबल प्रोटेक्शन सिस्टम because 50% of the half of the things are done by single application. You get, instead of 12 months, you get 30 months for filing patent applications abroad. एंड तीसरा होता है क्लासिफिकेशन। जैसे लाइब्रेरी के क्लासिफिकेशन होता है ना कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक्स हैं, फिजिक्स की हैं, केमिस्ट्री की हैं, इकोनॉमिक्स की हैं, मैनेजमेंट की हैं, इंग्लिश की बुक्स हैं, उनका सबका क्लासिफिकेशन नंबर होता है। इसी तरह से पेटेंट्स का एक क्लासिफिकेशन नंबर होता है और कॉपीराइट का होता है क्लासिफिकेशन नंबर, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, सबका क्लासिफिकेशन नंबर होते हैं। तो दीज आर ऑल एडमिनिस्टर्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। Okay, we'll discuss these in the next class. Okay, I am closing it now, and next class Monday नहीं, परसों Thursday को होगा ना next class? Yes, sir. It will be on Thursday. हाँ, तो Thursday को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, okay then. Sir, hello sir.